Namaskar dear learners, welcome to the MOOC course of Pharmacology 2 subject code BP503T. I am Dr. Sardindu Kumar Mishra, Associate Professor in the Department of Pharmacology at Ramis Institute of Vocational and Technical Education, Greater Noida. So, dear learners, today we are going to cover the last part of thyroid hormone, the part 2 of the thyroid hormone, in which in this lecture we are going to cover the thyroid inhibitors or the anti-thyroid drugs. So, starting with the learning objectives. The first learning objective is that the learners will be able to understand the classification of thyroid inhibitors or anti-thyroid drug. The learners will able to explore the pharmacology of various thyroid inhibitors, and at the last of this lecture learners will able to analyze the pharmacotherapy which is used for the treatment of thyrotoxicosis or thyroid storm. So, let us start with the anti-thyroid introduction of anti-thyroid or thyroid inhibitors. Basically, these are the drugs which are used to lower the functional capacity of hyperactive thyroid gland. It means, if the thyroid gland is secreting TSH or preparing T3, T4 above the limit of its prescribed limit, then this particular condition is known as hyperthyroidism, and this need to be treated because this will cause different type of disorders like Graves' disease and toxic nodular goiter. So, anti-thyroid drugs are generally used to treat the hyperthyroidism. Now, the term thyrotoxicosis is the term which is prepared by two words, that is thyro प्लस टॉक्सिकोसिस. मतलब थायराइड ग्लैंड का जब टॉक्सिसिटी बढ़ जाए, यानी कि वो हाइपर एक्टिव हो जाए और ज़्यादा TSH या T3, T4 का सिक्रीशन करने लग जाए, दैट विल लीड टू द एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ T3 और T4 एंड दिस विल लीड टू द हाइपर एक्टिविटी ऑफ द thyroid hormone. Now, what is Graves' disease? So, Graves' disease is the autoimmune disorder which is characterized by the production of immunoglobulin G. Okay. So, इसमें एंटीबॉडीज बनने लगते हैं क्योंकि ये एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है और ऑटो इम्यूनिटी के हाइपर एक्टिवेशन की वजह से इसमें कुछ पर्टिकुलर इम्यूनोग्लोबुलिन स्टिमुलेट हो जाते हैं विच आर नोन एज इम्यूनोग्लोबुलिन G, एंड दिस विल लीड टू द destruction, you can say, or you can say hyper stimulation of the secretion from the thyroid gland. ठीक है. तो यानी कि जब ये हाइपर स्टिमुलेशन हो जाए इन एंटीबॉडीज की वजह से या इस इम्यूनोग्लोबुलिन की वजह से, तो दिस विल लीड टू द एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ TSH फ्रॉम द थायराइड ग्लैंड. ठीक है. नाउ द सेकेंड symptom which is characterized in the Graves' disease is exophthalmos. ठीक है. तो exophthalmos is a disorder or you can say disease which is having a sign and symptom of bulging of eyes. मतलब इसमें क्या होता है, हमारे ऑर्बिट है जो आई की ऑर्बिट है, उसमें जो हमारे आई बॉल्स हैं, वो आई बॉल्स जो हैं वो क्या होते हैं, बाहर की तरफ प्रोट्रूड हो जाते हैं, बाहर की तरफ निकल जाते हैं या बल्जिंग हो जाती है उनकी, एंड दिस पर्टिकुलर डिसऑर्डर इज नोन एज व्हाट, एक्सोप्थैलेमस. ठीक है. अब ये ग्रेव्स डिजीज़ का एक कैरेक्टराइजेशन है, लेकिन जनरली इस डिजीज़ को ट्रीट करते वक्त हम एक्सेसिव जो सिक्रीशन है उसके ऊपर टारगेट करते हैं. टॉक्सिक नोडुलर गाइटर जो है, इसमें बेसिकली जो नोड्यूल्स हैं थायराइड ग्लैंड के, वो नोड्यूल्स जो हैं वो एक्सेसिव सिक्रीशन करने लगते हैं ड्यू टू द, यू कैन से, ट्यूमर इन पर्टिकुलर दैट ग्लैंड और दैट नोड्यूल. ठीक है. और इसकी वजह से ये प्रॉब्लम आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगी एल्डरली पेशेंट्स में. ठीक है. यानी कि जो पेशेंट्स हैं जो जिनका एज 45 या 50 से ऊपर है, उन पेशेंट्स में ये प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिलेगी. बट इसमें जो ऑकुलर चेंजेस है, यानी कि इसमें कोई भी आई से रिलेटेड, जैसे ग्रेव्स डिजीज में क्या हो रहा था, देयर इज ए इंडिकेशन ऑफ एक्सोप्थैलेमस. हाँ. सो एक्सोप्थैलेमस इज मिसिंग इन दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ डिजीज, दैट इज टॉक्सिक नोडुलर गोइटर. Now, let us move to the classification of anti-thyroid drug. So, there are four ways by which we can inhibit the hyperthyroidism or the secretion of the thyroid gland. So, the first class is inhibition of
हार्मोन सिंथेसिस। हार्मोन का मतलब यहाँ हम T3 T4 की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो बेसिकली दीज द ड्रग्स विच कम्स इन दिस कैटेगरी आर थायोएमाइड्स। द मेन एग्जांपल इज प्रोपाइल थायोरेसिल, मेथमाजोल and carbimazole. Carbimazole is the prodrug and methimazole is the active metabolite of the carbimazole. So you can read it as the single one, ठीक है। The second class is the inhibition of the iodide trapping. अब iodide trapping कहाँ हो रही थी? ये बेसिकली हो रही थी जहाँ पर हमारा NIS चैनल था, ब्लड से आयोडाइड को NIS जो है यानी सोडियम आयोडीन सिम्पोर्टर जो है, जो चैनल है, वो चैनल उसको ट्रैप कर रहा था, ट्रैप करके उसको कहाँ ला रहा था, हमारे थायराइड ग्लैंड के अंदर या हमारे फॉलिकल्स के अंदर ला रहा था। तो उसको हम इनहिबिट कर सकते हैं। इसमें जनरली जो ड्रग्स हम पढ़ते हैं थायोसाइनेट्स, परक्लोरेट्स एंड नाइट्रेट्स। नाउ दीज आर द ऑब्सोलेट वन। ये सारी ड्रग्स जो है अब नहीं चलती हैं, इनकी टॉक्सिसिटी ज़्यादा है। द थर्ड वन इज द इनहिबिशन ऑफ द हार्मोन रिलीज, यानी कि अब प्रोटियोलाइसिस और एक्सोसाइटोसिस के वजह से T3 T4 जो होते हैं वो रिलीज हो रहे थे हमारे थायराइड ग्लैंड में से, तो उसको आप इनहिबिट कर सकते हो। इसमें जनरली जो हम ड्रग चलाते हैं वो चलाते हैं हम आयोडीन, आयोडाइड, ल्यूगॉल सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो ये बेसिकली सॉल्यूशन ड्रग्स चलाते हैं। एंड द लास्ट वन इज टू destroy the thyroid tissue. This is basically a thing which is, you can say, the last stage, or this is the final therapy for the treatment of hyperthyroidism, ठीक है। Here we can use the radioactive iodine such as I-125 और I-131, ठीक है। तो इनके बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द थायोमाइड्स। सो थायोमाइड्स आर द ड्रग्स विच मैंने पहले बता दिया, विच इनहिबिट द हार्मोन सिंथेसिस, ठीक है। अब ये कैसे इनहिबिट करता है उसको समझ लेते हैं। जनरली व्हाट इट कैन डू, इट कैन bind with the thyroid peroxidase. What is the role of thyroid peroxidase? Thyroid peroxidase is the enzyme which you can say convert you can say the tyrosine residue, iodination of tyrosine residue, and it will also helpful for the कन्वर्जन ऑफ आयोडाइड इनटू आयोडीनियम आयन, ठीक है। तो ये उसको क्या करेगा, इनहिबिट कर देगा, ओके। अब दो मेन पाथवे हैं इसमें। फर्स्ट वन इज द इनहिबिशन ऑफ द आयोडिनेशन ऑफ द टायरोसिन रेसिड्यू, यानी कि ये क्या करेगा, टायरोसिन रेसिड्यू को थायरोग्लोबुलिन के साथ इंटीग्रेट नहीं होने देगा, इनहिबिट कर देगा, यानी MIT और DIT नहीं बनेंगे। और दूसरा तरीका क्या है, इट विल इनहिबिट द कपलिंग ऑफ द MIT एंड DIT, और इसको हम आइडोटायरोसिन रेसिड्यूज भी कह सकते हैं, ठीक है ना। यानी कि जब MIT और DIT नहीं बनेंगे, सॉरी MIT और DIT जो हैं वो कपल नहीं करेंगे, तो इसकी वजह से क्या होगा, T3 और T4 जो है वो नहीं बनेगा। नाउ जनरली थायोमाइड्स डू नॉट इंटरफेयर विद द ट्रैपिंग ऑफ द आयोडाइड, ठीक है। यानी कि ये जो क्लास है थायोमाइड्स का, ये ट्रैपिंग के साथ इनका बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं रहता, ये उस पर नहीं काम करते हैं। Do not modify the action of T3 and T4, that is peripheral conversion is also not targeted by this type of drugs. But one drug in this category, that is the propyl thiouracil, have the potential to inhibit the conversion of T4 into the T3, यानी कि ये कन्वर्जन जो हो रहा था T4 से T3 में, उसको प्रोपाइल थायोरेसिल जो है वो कंट्रोल करता है, ठीक है, यानी उसको इनहिबिट करता है। नाउ व्हाट इज द फार्माकोकाइनेटिक्स? सो जनरली दे आर ओरली एब्जॉर्ब्ड, they are very readily available to the systemic circulation, and they are distributed throughout the body, and specifically they crosses the placenta and come in the lactating woman's milk, ठीक है, हाँ। Now they are metabolized in liver, excreted through the urine, and generally the concentration of these drugs is maximum in the thyroid gland, ठीक है। That's why the half life of these drugs are very longer, ठीक है। यानी once you administer this drug, once you taken this drug, ठीक है, it will reside in your body for a longer period, ठीक है। Now carbimazole, already told you that it is a prodrug, and after metabolism it will converted into the methimazole, जो यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो methimazole is the active metabolite, and then that will give the result by inhibiting the hormone synthesis, ठीक है। Now एडवर्स इफेक्ट्स की अगर हम बात कर लेते हैं, तो एक्सेसिव यूज ऑफ दिस ड्रग और समटाइम इट मे कॉज द हाइपोथायरॉयडिज्म, ठीक है। यानी कि अब हमने ट्रीटमेंट किसका कर रहे थे, हाइपरथायरॉयडिज्म का, बट समटाइम्स इफ द ट्रीटमेंट यू कैन से द पीपल इज having some issue, genetic issues and some physiological issues, so sometime it will lead to the hypothyroidism, and this may this is a reversible change, or you can say this is a reversible phase which is stopped after the treatment is stopped by the clinician, ठीक है ना। Now
goiter does not develop with the appropriate dose. ग्वाइटर का सिम्टम इसमें देखने को बहुत कम मिलता है कि ग्वाइटर डेवलप हो जाए इसके साइड इफेक्ट में, ठीक है, बट समटाइम्स दे विल लीड टू द जीआई इंटॉलरेंस, स्किन रैसेस, जॉइंट पेन, लीवर डैमेज. हेपेटाइटिस इज ऑल्सो वेरी एसोसिएटेड विद द प्रोपाइल थायोरेसिल, ठीक है, तो आप इसको याद रखना. प्रोपाइल थायोरेसिल का एक मेजर जो साइड इफेक्ट दैट इज द हेपेटाइटिस. समटाइम्स दे ऑल्सो लीड टू द ग्रेइंग ऑफ द हेयर, बाल आपके भूरे होने लग जाएंगे, लॉस ऑफ टेस्ट एंड द fever is infrequent in this particular treatments. Now the carbimazole is very commonly used in India, but the marketed you can say the market methimazole is not marketed in India, ठीक है, it is not very commonly sold in the Indian market. Now propyl thiouracil when compared to the carbimazole and methimazole, they have a shorter half life and shorter duration of action, ठीक है, और इसका एक रीज़न है जिसकी वजह से हम इसको थोड़ा कम चलाते हैं. एंड इट इज़ अ रिजर्व ड्रग फॉर द प्रेगनेंसी, अर्ली प्रेगनेंसी, यानी इफ सम लेडी हैव डेवलप्ड द हाइपरथायरॉयडिज्म, सो दिस इज अ वेरी सेफेस्ट ड्रग ड्यू टू द लेस प्लासेंटल ट्रांसफर, एंड this is the drug which is very commonly used for treatment of the hyperthyroidism patient during their pregnancy, ठीक है ना. Now antithyroid drugs also control the thyrotoxicosis in which both the Graves and the toxic nodal goiter is seen, ठीक है. क्लिनिकल इंप्रूवमेंट स्टार्ट्स आफ्टर द 1 to 2 weeks, दैट इज द रीज़न. इसके इफेक्ट्स को आने में हमको 2 हफ्ते 15 दिन कम से कम लग जाते हैं, ठीक है. तो इसके लिए हमको साथ में जो एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे को पैल्पिटेशन होने लग जाए, टैकीकार्डिया होने लग जाए, ठीक है ना, तो फॉर दैट वी कैन यूज़ द बीटा ब्लॉकर्स एंड डिफरेंट ड्रग्स फॉर दैट, फॉर ऑगमेंटिंग दैट पर्टिकुलर यू कैन से effects, associated effects, ठीक है ना. Now the next class is the iodine and the iodides, ठीक है. Iodine basically is the constituent of thyroid hormone, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, हाँ, ठीक है, and it is the you can say is the precursor for the formation of MIT-DIT, and later on it will move to the T3 and T4, but excessive iodine concentration will lead to the थायराइड इनिबिशन, ठीक है, यानी कि ये क्या करता है, जब हम इसके कंसंट्रेशन को थोड़ा बढ़ाते हैं तो ये कई बार फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक सिस्टम के थ्रू थायराइड इनिबिशन का भी काम करता है. जनरली इन ग्रेव्स डिजीज द ग्लैंड इफ बिकम्स एनलार्ज, ठीक है, जनरली क्या होता है ग्रेव्स डिजीज में, अगर वो ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड जो है वो अगर उसका साइज बढ़ गया तो व्हाट आयोडीन कैन डू, आयोडीन कैन श्रिंक दैट पर्टिकुलर ग्लैंड एंड डिक्रीज द ब्लड सर्कुलेशन दैट टू पर्टिकुलर ग्लैंड, ठीक है. ये मेजर एक इफेक्ट है. जनरली आयोडीन और आयोडाइड का जो रिस्पॉन्सेज है दे आर वेरी कॉमन, आइडेंटिकल, ठीक है, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्शन इज इनहिबिशन ऑफ द हार्मोन रिलीज थायराइड कॉन्स्टिपेशन, ठीक है, यानी कि यहाँ पर ज़्यादातर हमको जो आयोडीन की अगर हम बात करें कि ये बेसिकली कर क्या रहा था, तो ये जो एंडोसाइटोसिस हो रहा था, ये जो प्रोटियोलाइसिस हो रहा था, ठीक है ना, ये उसके रिलीज को, मतलब उसको इनहिबिट कर देगा, यानी जो T3 T4 थायरोग्लोबुलिन के फटने की वजह से ब्लड सर्कुलेशन में आ रहे थे, ठीक है ना, उसको ये प्रिवेंट करेगा. और जो प्रोटियोलाइसिस हो रहा था, यानी थायरोग्लोबुलिन इज प्रोटीन, दैट्स व्हाई इट कैन ब्रेक डाउन द पेप्टाइडेज, ठीक है, तो वो उसको ये क्या करेगा, इनहिबिट कर देगा. तो आयोडीन का काम क्या है, टू इनहिबिट द T3 T4 रिलीज फ्रॉम द थायरोग्लोबुलिन, ठीक है. एक्सेस ऑफ द आयोडीन iodide inhibits its own transport into thyroid cell, which interfere with the expression of the NIS. Sometimes it will also lead to the inhibition of the NIS expression, ठीक है, यानी कि ये NIS का यानी सोडियम आयोडीन ट्रांसपोर्टर सिस्टम जो है उसको इनहिबिट कर देता है, जिसकी वजह से आगे चलकर ये प्रॉब्लम हमें मतलब जो उसके एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स हैं हाइपरथायरॉयडिज्म की वो मतलब ट्रीट हो जाती हैं, ठीक है. जनरली दे आर यूज्ड फॉर द प्री ऑपरेटिव प्रिपरेशन. इसका मतलब अगर हम मान लो अगर कोई पेशेंट है जो कि थायरॉयडोटॉक्टमी के लिए जा रहा है, इसका मतलब है रिमूवल ऑफ थायराइड ग्लैंड, ठीक है. तो थायरॉयडोटॉमी का मतलब क्या हुआ, रिमूवल ऑफ थायराइड ग्लैंड, ठीक है. तो
उस ऑपरेशन में जाने से पहले जनरली थायरॉइडक्टॉमी किसमें किया जाता है, द पेशेंट हु आर सफरिंग फ्रॉम द ग्रेव्स डिजीज एंड दे हैव अ वेरी एडवांस कंडीशन ऑफ दैट डिजीज, ठीक है ना। तो जनरली व्हाट वी कैन डू, द क्लिनिशियन और सर्जन विल रिमूव दैट थायराइड ग्लैंड, हाँ, और या जो टॉक्सिक नोडुलर गॉइटर है उसको हम बाहर निकाल देते हैं थायराइड ग्लैंड के साथ, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हमको ठीक हो जाती है। बट थायरॉइडक्टॉमी करने के पहले आयोडीन को हमें 10 डेज पहले से स्टार्ट करना होता है, ठीक है। अब 10 डेज पहले स्टार्ट करने के पीछे लॉजिक जो है वो क्या है कि ग्लैंड को हमें थोड़ा सा फर्म बनाना होता है, लेस वेस्कुलर बनाना होता है, और थोड़ा सा प्री ऑपरेटिव कंडीशंस के लिए उसको प्रिपेयर करना होता है, ठीक है। तो इसीलिए हम आयोडीन जो है वो 10 डेज पहले, ऑपरेशन के 10 डेज पहले स्टार्ट कर देते हैं, और ये बहुत इफेक्टिव रहता है थायरॉइडक्टॉमी में, ठीक है। जनरली थायराइड स्ट्रॉम को ट्रीट करने के लिए, अब ये क्वेश्चन है जो दैट इज वेरी कॉमनली यूज्ड इन द एग्जामिनेशन, हाँ, व्हाट इज थायराइड स्ट्रॉम। सो थायराइड स्ट्रॉम यू कैन से इट इज द एडवांस स्टेज और द फ्लोरिड स्टेट ऑफ द थायरोटॉक्सिकोसिस, ठीक है। मतलब थायरोटॉक्सिकोसिस है जो उसका जो बहुत एडवांस स्टेज है, दैट इज द थायराइड स्ट्रॉम। स्ट्रॉन्ग का मतलब जनरली हम अगर हिंदी में बात करें तो इसको हम कहते हैं आंधी, ठीक है। तो थायराइड हार्मोन का जब आंधी आने लग जाए, मतलब बहुत एक्सेसिव सिक्रीशन होने लग जाए, देन दिस इज नोन एज व्हाट थायराइड स्ट्रॉम, ठीक है। और थायराइड स्ट्रॉम को ट्रीट करने के लिए हम व्हाट वी कैन डू, वी कैन वेरी कॉमनली यूज द ल्यूगॉल्स आयोडीन, ठीक है। ल्यूगॉल्स आयोडीन इज नथिंग, इट इज द 5% ऑफ आयोडीन प्लस 10% ऑफ KI, ठीक है। तो ये दोनों का मिक्सचर को हम क्या कहते हैं, ल्यूगॉल्स आयोडीन, ठीक है। तो व्हाट वी कैन डू, वी कैन टेक द 6 to 10 ड्रॉप्स ऑफ दिस ल्यूगॉल सॉल्यूशन, ठीक है, एंड दिस विल you can say stop the release of T3 T4 from the thyroid gland, and it also prevent the conversion of T4 into the T3। यानी कि ल्यूगॉल सॉल्यूशन इतना पोटेंशियल है कि ये क्या करता है, ये it will inhibit the secretion of T3 T4 as well as it inhibits the conversion of the T4 into the T3, यानी it can act by the 2 different mechanisms, ठीक है। Now it also used for the prophylaxis of endemic goiter। Now what is endemic? तो endemic एक एपिडेमियोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी है, दैट मीन्स जब कोई डिजीज एक पर्टिकुलर लोकेशन से एसोसिएटेड हो, या एक पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट या एक पर्टिकुलर सिटी या शहर से एसोसिएटेड हो, देन दैट इज नोन एज व्हाट एंडेमिक, इट इज रेस्ट्रिक्टेड। फॉर एग्जांपल चिकन पॉक्स एक टाइम पर यूके का यानी इंग्लैंड या ब्रिटेन का एंडेमिक डिजीज था, ठीक है। मलेरिया की अगर हम बात कर लें तो मलेरिया तो अफ्रीकन कंट्रीज में एक बड़ा एंडेमिक डिजीज था, बट लेटर ऑन दैट विल मूव टू द एपिडेमिक एंड समटाइम यू कैन से पैंडेमिक ऑल्सो। हाँ, एड्स इज द एग्जाम्पल, बट एड्स इज नॉट द एंडेमिक डिजीज, इट इज एपिडेमिक और यू कैन से द pandemic to the African countries. It is very commonly found in the African countries. Most patients are from the African countries. Now what are the side effects of the this iodine or the iodide treatment, ठीक है। तो generally what happens if you swelling of lips, eyelids and the angioedema of larynx is very commonly seen with the iodine or iodide therapy, ठीक है। आपके जो लिप्स हैं वो स्वेल कर जाएंगे, आंखों की जो पुतलियां हैं वो स्वेल कर जाएंगी, ठीक है। लैरिंक्स में आपके जो ब्लड वेसल्स हैं उनके अंदर एक्सेसिव फ्लूइड्स रिटेंशन होने लगेगा, जिसकी वजह से आपको बोलने में दिक्कत होगी, स्लरिंग होने लग जाएगी, आपको इन्फ्लामेशन होने लग जाएगा म्यूकस मेम्ब्रेन का, और समटाइम्स द सलाइवेशन और द राइनोरिया एक्सेसिव नोजी सिक्रीशन फ्रॉम योर नोज ना, ठीक है। आपके नाक से बहुत पानी गिरने लग जाएगा, दैट इज नोन एज राइनोरिया, ठीक है। तो दिस इज अ वेरी कॉमन साइड इफेक्ट एसोसिएटेड विद आयोडीन। नाउ लेट्स मूव टू द रेडियो एक्टिव आयोडीन विच जनरली यूज्ड टू inhibit or to destroy the thyroid tissues, ठीक है ना। अब जनरली हम जो यूज करते हैं वो करते हैं हम I-125, I-127 और I-131, ये रेडियो एक्टिव वो हैं आयोडीन्स हैं, ठीक है ना, दैट्स वाई हम इनके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो लेकिन अगर हम बात करें तो क्लिनिकली जो अप्रूव्ड है दैट इज द I-131 एंड दे आर वेरी कॉमनली यूज्ड, एंड द हाफ लाइफ ऑफ दिस पर्टिकुलर ड्रग इज अराउंड यू कैन से 8 days, ठीक है। तो 8 दिन तक ये आपके बॉडी में वो रहता है, ठीक है। द केमिकल बिहेवियर इज ऑफ I-31 आयोडीन इज वेरी सिमिलर टू दैट ऑफ द स्टेबल आइसोटोप ऑफ द दिस I-125 एंड 127, ठीक है। नाउ ओके, सो what they can do, so particularly these iodide or the radioactive iodines, ठीक है ना, they penetrate the thyroid tissues
and once they enter into the thyroid tissue through the radiation, because they are radioactive, so it means they emit the what रेडिएशन, ठीक है। तो ये रेडिएशन रिमिट करते हैं और ये इनका जो रेडिएशन होता है, दिस रेडिएशन विल पेनिट्रेट up to the 2 millimeter of the tissue and this will damage the excessive growth of the tissue around the thyroid or in the thyroid gland, ठीक है। और इसकी वजह से हमारा जो हाइपरथायरॉयडिज्म था वो क्या होता है, कंट्रोल हो जाता है, ठीक है। जनरली इसको देते हैं जब हम इसको देते वक्त इसके सोडियम सॉल्ट को यूज़ करते हैं, वाटर में डिजोल्व करके ओरली दिया जाता है पेशेंट को, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर द डायग्नोस्टिक पर्पस, ठीक है, डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए भी, फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द यू कैन से हाइपरथायरॉयडिज्म और द एक्सेसिव थायराइड नोडुलर गोइटर को डिटेक्ट करने के लिए हम करते हैं। वहाँ पर जो डोज यूज़ करते हैं दैट इज़ अराउंड 25 to 100 माइक्रो क्यूरी, ठीक है। क्यूरी इज द यूनिट विच इज़ वेरी कॉमनली यूज फॉर द रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स, ठीक है, इज गिवन एंड इससे थायराइड टिश्यू को कोई डैमेज नहीं होता, इस डोज पर कोई डैमेज नहीं होता, ठीक है ना। हाँ, इससे हम ज़्यादा डोज पे जाएंगे तो इट विल एक्ट एज अ व्हाट थायराइड इनहिबिटर बाय डिस्ट्रॉइंग द थायराइड टिश्यूज, ठीक है। नाउ मूव टू द आइपोडेट्स, आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट मीडिया, ठीक है। व्हाट इट कैन डू, इट कैन सप्रेस द कन्वर्जन ऑफ T4 into T3, सेम, एक तो T4 से T3 के कन्वर्जन को रोक देगा, ठीक है। इसमें जो इन्वॉल्व होता है जनरली वो होता है 5D आयोडीनेज, ठीक है। तो हम उसको 5DI के नाम से यहाँ इंडिकेट कर लेते हैं। 5D आयोडीनेज जो है वो इसको मतलब इनहिबिट कर देता है ये उसको, और इसके इनहिबिशन की वजह से T4 से T3 नहीं बनता है। और T3 हम लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था, इट इज़ अ एक्टिव कंपोनेंट, एक्टिव थायराइड हार्मोन विच गिव इट्स मेटाबॉलिक एंड द फिजियोलॉजिकल फंक्शंस, ठीक ना। नाउ आइपोडेट हैज़ वेरी यूजफुल इन रिड्यूसिंग द T3 कंसंट्रेशन इन द थायराइड स्ट्रॉम, ठीक है। तो जनरली मतलब आइपोडेट्स जो हैं इनका बहुत कॉमन यूज किया जाता है कहाँ पर, थायराइड स्ट्रॉम या फिर थायरोटॉक्सिकोसिस में। थोड़ा सा डिफरेंस है थायरोटॉक्सिकोसिस और थायराइड स्ट्रॉम में, इट इज़ द लेटर स्टेज ऑफ द थायरोटॉक्सिकोसिस। आयनिक इनहिबिटर्स की अगर हम बात कर लें तो ये वो ड्रग्स हैं जो कि मोनोवोलेंट एनायंस होते हैं एंड दे कैन इनहिबिट द आयोडाइड ट्रैपिंग बाय द NIS, सोडियम आयोडीन सिम्पोर्टर, ठीक है। एंड दिस विल लीड टू द यू कैन से inhibition of the T4 and T3 synthesis, ठीक है। but they are very toxic, that's why they are not used by the clinicians, they are obsolete in the antithyroid class, ठीक है। एग्जाम्पल्स हैं थायोसाइनेट्स, परक्लोरेट्स, ठीक है। ये ड्रग्स जो हैं जनरली यूज़ किए जाते हैं इसमें, लेकिन इनका क्लिनिकल एप्लीकेशन जो है वो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। एडजुवेंट ड्रग्स की बात कर लें, नाउ मेजर तो एंटीथायरॉइड ड्रग हमने पढ़ लिया, क्या है, प्रोपाइलथायोरेसिल, मेथिमाजोल, आयोडीन, आयोडाइड, ल्यूगॉल सॉल्यूशन, आयोडीन, आयोडाइड, आयोडीन 131, रेडियोएक्टिव आयोडीन, आइपोडेट्स, ठीक है। बट सम टाइम, बिकॉज व्हाट आई हैड मेंशन इन प्रीवियस स्लाइड दैट प्रोपाइलथायोरेसिल, मेथिमाजोल के इफेक्ट को आने में कम से कम 15 डेज लग जाते हैं एंड ड्यू टू हाइपर एक्टिवेशन ऑफ दिस थायराइड ग्लैंड, ठीक है, हमें बहुत सारे साइड मतलब जो साइड सिम्टम्स हैं वो देखने को मिलते हैं, जैसे पैल्पिटेशन हो रहा है या फिर हमको ट्रिमर्स आने लग जाते हैं या फिर टैकीकार्डिया, बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं। उनको ट्रीट करने के लिए हम क्या करते हैं, जनरली हम एडजुवेंट थेरेपीज यूज करते हैं, सच एज द फर्स्ट वन इज विच इज वेरी कॉमनली यूज्ड इज द बीटा ब्लॉकर्स। व्हाट वी कैन डू, we can opt two type of beta blockers, one is the propranolol and second one is the esmolol. It is very commonly used for the treatment of the matlab it is very commonly used as adjuvant for the antithyroid drug, ठीक है। Now what they can do, they can inhibit the sympathetic stimulation, ठीक है, which will very commonly seen in the thyrotoxicosis and this stimulation will lead to the ट्रिमर्स, आपके हाथ ऐसे ऐसे कांपने लग जाएंगे, ठीक है, टैकीकार्डिया होने लगेगा, हार्ट रेट बढ़ जाएगा, पैल्पिटेशन होने लग जाएगा, एंग्जाइटी होने लग जाएगा, ठीक है ना। एंड समटाइम्स हाइपोथर्मिया जैसी कंडीशन को भी ये वर्कआउट करते हैं, ठीक है। तो इन सारे कंडीशंस को ट्रीट करने के लिए हम क्या करते हैं, क्योंकि ये सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन की वजह से हो रहा था, दैट्स व्हाई वी नीड अ बीटा ब्लॉकर और सिंपैथेटिक ब्लॉकर, ठीक है ना। तो दिस विल लीड टू द इनहिबिशन ऑफ दिस पर्टिकुलर सिम्टम्स। इनका यूज़ हाइपरथायरॉयडिज्म में बहुत कॉमनली किया जाता है और उनका यूज़ करने के पीछे जो दो कंसेप्ट्स हैं, दो मतलब पॉइंट्स हैं, वो हैं कि बेसिकली व्हेन वी आर वेटिंग फॉर द रिस्पॉन्सेज, ठीक है, क्योंकि प्रोपाइलथायोरेसिल, मेथिमाजोल विल टेक अराउंड 15 डेज, ठीक है, 2 वीक्स, ठीक है। तो 2 वीक्स अगर वो ले रहा है अपना इफेक्ट देने में, तो 15 डेज में आपको हाइपरथायरॉयडिज्म से एसोसिएटेड साइड इफेक्ट्स भी मतलब जो सिम्टम्स है वो देखने को मिलते हैं। तो उन सिम्टम्स को वर्कआउट करने के लिए हमें इन ड्रग्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है। नाउ
प्रोप्रेनॉल का जो डोज जो जनरली हम देते हैं वो देते हैं 1 to 2 मिलीग्राम थ्रू द इंट्रावेनस रूट, एंड वंस दिस इज गिवन बाय द स्लो इन्फ्यूजन, ठीक है, वी विल मूव टू द 40 to 80 mg ऑफ ओरल प्रोप्रेनॉल 6 आवरली, ठीक है, क्लियर। अब इफ सम पेशेंट हैव इशू विद द बीटा ब्लॉकर्स, इट मीन्स अगर उसके अंदर बीटा ब्लॉकर्स कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, प्रोप्रेनॉल या फिर हम कहें एस्मोलॉल, एटेनोलॉल जो है कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, नहीं चलाना है, डॉक्टर ने मना किया हुआ है, तो देन वी हैव अ सेकंड ऑप्शन दैट इज द कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, और इस क्लास में सबसे अच्छी ड्रग जो है वो है दैट इज द डिल्टियाजेम। डिल्टियाजेम हम यूज करते हैं एंड इट इज अ वेरी इफेक्टिव टू डिक्रीज द दिस पर्टिकुलर साइड इफेक्ट्स, ट्रिमर्स, टैकीकार्डिया, पैल्पिटेशन, एंग्जाइटी, ठीक है। अब steroids is also an option, ठीक है, we can opt for the methylprednisolone or the hydrocortisone, ठीक है, and they can lead to the ट्रीटमेंट ऑफ द ग्रेव्स ऑप्थेल्मोपैथी, ठीक है ना, ग्रेव्स डिजीज में जो एक्सोप्थेल्मस हो रहा था उसके ट्रीटमेंट में बहुत अच्छे से यूज़ किया जाता है। नाउ मूविंग टू द थायरॉयडस्ट्रोम, इट इज़ वेरी कॉमनली आस्किंग ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, मतलब बहुत कॉमनली ये क्वेश्चन आता है, तो इसलिए इसके बारे में हम ज़्यादा फोकस कर लेते हैं। व्हाट इज थायरॉयडस्ट्रोम? सो इट इज़ द फ्लोरिड स्टेट ऑफ द थायरोटॉक्सिकोसिस, ठीक है, तो थायरोटॉक्सिकोसिस का जो फ्लोरिड स्टेट है दैट इज नोन एज व्हाट? थायरॉयडस्ट्रोम। इट इज़ लाइफ थ्रेटनिंग, इट में लीड टू द हाइपर मतलब डेथ ऑफ द पेशेंट, ठीक है, तो इसको ठीक करने के लिए हम जनरली जो मतलब ट्रीटमेंट्स लेते हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो जनरली जो ये प्रॉब्लम आती है वो क्रोनिक ग्रेव्स डिजीज की वजह से देखने को मिलती है, ठीक है, कभी कभी इसका रीज़न मल्टीनोडुलर गॉइटर भी होता है, ठीक है, एक्यूट थायरॉइडाइटिस की वजह से भी कई बार कॉजेज होते हैं, बट दीज आर द रेयर कॉजेज। एंड फैसिक्टेसियस मैलिग्नेंसी, मतलब ये एक एबनॉर्मल मैलिग्नेंसी है या आर्टिफिशियल मैलिग्नेंसी है जो कि थायरॉइड ग्लैंड में देखने को मिलती है, ठीक है। सिम्टम्स देख लें तो हाई फीवर है अराउंड 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक, एजिटेशन, कन्फ्यूजन, साइकोसिस, कोमा, ठीक है, जॉन्डिस, डायरिया, वॉमिटिंग, ये सारे सिम्टम्स जो हैं ये देखने को मिलते हैं थायरॉयडस्ट्रोम में, ठीक है। नाउ व्हाट आर द ट्रीटमेंट्स वी कैन गो फॉर, ठीक है, तो एक तो O2 का हम सप्लाई ज़्यादा दें क्योंकि इसमें हमको सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है, ठीक है। दूसरा, रैपिड कूलिंग करना स्टार्ट करें, ठीक है, अगर हमको हाइपरथर्मिया हो गया है, ठीक है, तो अगर हमको हाइपरथर्मिया है तो उसकी कूलिंग करने के लिए हम क्या करेंगे? वी कैन यूज़ द आइस पैक्स, कूलिंग ब्लैंकेट्स, ठीक है। IV फ्लूइड चलाइए बोलस के थ्रू, डिहाइड्रेशन अगर है तो, ठीक है। अगर हमारे को CHF देखने को मिल रहा है तो आइनोट्रॉप्स चलाएंगे हम, एंड प्रोप्रेनॉल 1 मिलीग्राम डोज या लेविटोलॉल 10 to 20 मिलीग्राम डोज IV चलाते रहेंगे जब तक कि हमको सिम्टम से आराम ना मिल जाए। डिल्टियाजेम इज ऑल्सो वेरी कॉमन ड्रग इफ द बीटा ब्लॉकर इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड। IV डायरेटिक्स देना पड़ता है अगर CHF देखने को मिला हमें, ठीक है। IV हाइड्रोकॉर्टिसोन इज ऑल्सो वेरी गुड चॉइस फॉर द यू कैन से एसोसिएटेड सिम्टम्स, ठीक है। प्रोपाइल थायोरेसिल चलाना है हमें 600 to 1200 मिलीग्राम पर ओलर और बाय द नॉर्मल सलाइन, ठीक है। सोडियम आयोडाइड भी हम इसमें चलाते हैं थ्रू IV रूट, और जो कंसंट्रेशन मतलब जो डोज रहता है वो 1 ग्राम रहता है फॉर 1 आवर, एंड फिर उसके बाद हमको प्रोपाइल थायरोसिल स्टार्ट कर देना होता है, ठीक है। और फिर एक लास्ट थेरेपी है दैट इज द फाइंड द कॉज ऑफ द प्रेसिपिटेटिंग इटियोलॉजी फैक्टर, ठीक है ना। इसके साथ ही दीज आर द रेफरेंसेस फॉर द एक्सटेंडेड स्टडी, ठीक है। थैंक यू फॉर योर पेशेंस लिसनिंग, थैंक यू।